week began to speak on receiving more and more grace from God, growing in the grace of God. हम जहाँ पिछली बार रुके थे वहीं से आगे चलेंगे। पिछली बार हमने देखा था प्रभु के अनुग्रह में और अधिकाई से बढ़ते जाने के बारे में। Before that, we looked at the aspect of growing in the knowledge of God. उससे पहले हमने मनन किया था प्रभु के ज्ञान में बढ़ने के बारे में। The last verse of the second letter of Peter, in chapter 3, verse 18, Peter writes, "Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." और दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय की 18वें आयत में उसमें पहले भाग में लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। There's no limit to growing in the knowledge of God, no limit to growing in the grace of God. तो प्रभु के ज्ञान में और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। There's no limit to grace. अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है। And by definition, grace is received, it is not earned. और अगर परिभाषा के हिसाब से देखें तो अनुग्रह जो है वो हम सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं, उसको हम कमा नहीं सकते। And last week began to speak about how we hinder grace by allowing certain obstacles to come in the way of God pouring His grace upon us. और हमने पिछली बार देखा था कुछ बाधाएं आती हैं जो कि प्रभु का जो अनुग्रह हमारे पास वो नेलता है उसको आने से रोकती हैं। The Apostle Paul's ministry was entirely by the grace of God. His life was by the grace of God. His ministry was by the grace of God. और हमने पौलुस के जीवन से देखा था उसकी सेवकाई, उसका पूरा जीवन जो था वो प्रभु के अनुग्रह पे ही आधारित था। And we know that God shows no favoritism. और हम जानते हैं प्रभु कोई पक्षपात नहीं करते। There are many verses that say God doesn't show favoritism. One such verse is Ephesians chapter 6, verse 9. और इफिसियों 6:9 जैसी और भी कई आयतें जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। So Paul can receive so much of grace for his life and ministry. We also can receive that grace for life and ministry. तो जब पौलुस को उसके जीवन के लिए, उसकी सेवकाई के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मिला, उसी तरह से हमें भी वो अनुग्रह मिल सकता है। But we must know the hindrances that come our way and throw them away that we can receive grace. पर हमें मालूम होना चाहिए उन बाधाओं के बारे में जो इस अनुग्रह को हमें बाधा बनती हैं और हमें उन्हें हटा के उस अनुग्रह में बढ़ते जाना है। And last week we spoke about two hindrances. और पिछले हफ्ते हमने दो बाधाओं के ऊपर बात की थी। One was pride. एक था घमंड। Because Proverbs 3:34 says, God resists the proud, He gives grace to the humble. और नीति वचन 3 उसकी 33वीं आयत में लिखा है कि 34वीं आयत में ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। And we must learn to humble ourselves that we can receive more and more grace from God. और हमें सीखना है कि हम परमेश्वर से सीखें कि हम कैसे उस अनुग्रह में नम्रता से और उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। Second thing we spoke of last week was something related to pride, that is bitterness and anger and bitterness. और दूसरी बात जो हमने देखी वो घमंड से ही लगभग मिलती जुलती है कि वो जो है हम कड़वाहट आ जाती है हमारे हृदय में। Hebrews 12:15 talks about how we miss the grace of God and bitter root grows up in our hearts. और इब्रानियों 12:15 में पढ़ते हैं किस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं और एक कड़वी जड़ हमारे अंदर फूट कर कष्ट देती है। And last week we spoke about how pride leads to bitterness because when someone hurts them, does something not pleasant to us, we get upset, we get hurt, and that leads to pride and we get bitter with them and we hinder grace. और हमने देखा था कैसे एक घमंड जो हमारे अंदर होता है, जब हमारे विरोध में कोई कुछ बुरा कर देता है तो हम जो है उससे बाधित हो जाते हैं और हम उससे नाराज हो जाते हैं और फिर हम जो है उस तरह से एक तरह से हमारे अंदर ये घमंड के कारण ये कड़वाहट आ जाती है। We took the example of Old Testament Naaman in 2 Kings chapter 5. We read about how Naaman had leprosy and he was sent by the maid in his house, the Jewish lady, to Elisha's house to be healed of leprosy. और हम दूसरे राजा 5वें अध्याय में जानते हैं कैसे नामान जो कोढ़ी था वो यहूदी लड़की ने उसको बताया और वो चंगा होने के लिए उसको भेजा गया वहां से कि इजराइल में कि वो वहां आके चंगा हो सके। And he reaches the house of Elisha. He says outside the house, expecting Elisha to come out and pray for him. और जब वो एलीशा के घर तक पहुंचता है, घर के बाहर ही रहता है और सोचता है कि वो आशा रखता है कि एलीशा बाहर आके उसको स्वीकार करेगा, उसका अभिनंदन करेगा। Elisha doesn't even come out because probably he was busy praying there. I don't know why. He didn't come out. He sends a messenger to tell Naaman to Jordan and be healed.
और वो नहीं आया बाहर। किस कारण से नहीं, हम नहीं जानते, शायद प्रार्थना कर रहा होगा और कोई बात होगी। और उसने अपने सेवक को बोला, जाके उसको नामान को बता दो कि यरदन नदी में 5 बार गोता लगाए। And he gets very offended because he's come all the way from Damascus, from Aram, to be healed with all the soldiers and all the paraphernalia of the goes army officer. And Elisha doesn't even come out of the house to see him. और वो वहां से अपने राजा के यहाँ से आता है, दमिश्क से बड़ी सेना लेके, बड़े बहुत सारे लोगों के साथ, बड़े आदर के साथ, और यहाँ पहुंचता है, एलिशा उसको स्वीकार तक नहीं करता। And he goes away in a rage, very angry and bitter. और बड़े क्रोध में और कड़वाहट से बड़ा हुआ दुखी होके वहां से जाता है। On the advice of his servants, he comes back, and then he goes and does what he's asked to do, dip 7 times, and he's healed of leprosy. Brother, are you there? I think we lost you. Manish, can you carry on? Because I think we lost Ashwini on the connection. Right, sir. Okay. Naaman almost lost out on healing because he went away in a rage. तो नामान ने अपनी चंगाई को खो दिया था, लगभग खो दिया था, क्योंकि वो क्रोध में वापस जा रहा था। But he came back because someone told him, if the prophet told something great to do, you would have done it. It's only saying wash and be cleansed. So why can't we go and wash yourself 7 times? तो उसके सेवक ने कहा कि आपको अगर सिर्फ वो अपने आप को नहाने धोने के लिए और अपने चंगा होने के लिए कह रहा है, तो आप ये करके क्यों नहीं देख लेते? Imagine he lost out on healing from leprosy, all because he got hurt by Elisha apparently insulting him by not coming out. और सिर्फ हम इस बात को सोचें मन में कि कैसे उसने कितने बड़े चंगाई को उसने खो दिया होता सिर्फ अपने क्रोध और अपने अहंकार के कारण से। The same way, so often we miss out on genuine fellowship with God. When you get angry, we get bitter, we don't feel like praying. And to be able to pray and have fellowship with God is the grace of God. That also we miss out when you have bitterness. और इसी रीति से कई बार हम परमेश्वर की संगति और सहभागिता को खो देते हैं जब हम कलीसिया के या अपने भाई बहनों के विरोध में हमारे मन में क्रोध या अपना अहम आ जाता है। In Mark 11:24 and 25, Jesus says, मरकुस 11 उसके 24 और 25 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, whatever you ask for in prayer, believe you received it and it'll be yours. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। And when you stand praying, remember you hold anything against anyone, forgive him that the Father will forgive you. और जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध है हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। From this we understand that we can't even have one-to-one fellowship with the God of love if we have bitterness, anger and rage in our hearts. अगर हमारे मन में क्रोध और लोगों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष है तो फिर हम परमेश्वर के साथ हमारी एक से एक की संगति और सहभागिता नहीं हो सकती। So bitterness actually hinders the grace of God. कड़वाहट परमेश्वर के अनुग्रह को रोक देता है। The third thing I want to talk about today is idolatry. और तीसरी बात जो आज भाई कहते हैं मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं वो है मूर्ति पूजा। There's something that Jonah said from the belly of the fish when he was in the water in the Mediterranean Sea. और कुछ इस रीति से हम देखते हैं योना ने जब वो मछली के पेट में था और समुद्र की गहराइयों में था उस समय में उसने प्रार्थना किया। He utters an amazing oracle. उसने परमेश्वर के सामने एक बड़ी अद्भुत प्रार्थना किया। From the belly of the fish. मछली के पेट में से। In Jonah chapter 2 verse 8 he says, ये योना की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय उसकी 8वीं आयत में वो ऐसे कहता है, those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs. जोना 2:8 verse 8. जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। करुणा को छोड़ देते हैं। In the grace available for them to lose because they cling to worthless idols. तो जो परमेश्वर उनके लिए उपस्थित हैं उसको वो करुणा निधान को छोड़ देते हैं। Now idolatry in the New Testament is not just having a physical idol. और फिर जो नए नियम में हम मूर्ति पूजा के बारे में जो पढ़ते हैं वो सिर्फ एक आकार जो मूर्ति का आकार है उसके बारे में नहीं है। We think only people who worship physical idols are idolaters, but the fact is that in the New Testament greed is considered idolatry.
और हम ऐसा सोचते हैं कि जो लोग मूर्ति या किसी पत्थर या किसी काठ को आकार दे करके पूजते हैं वो वही से मूर्ति पूजक हैं। ऐसा नहीं है। नए नियम में लालच को भी मूर्ति पूजा ठहराया गया है। Third chapter of Colossians, verse 5, Ephesians chapter 5, verse 5, both talk about how greed is tantamount or equal to idolatry. कुलुसियों 3 और 5 और इफिसियों का Chapter 5, verse 5 of Ephesians. इफिसियों 5:5 में भी हम दोनों में हम इस मूर्ति पूजा के बारे में पढ़ते हैं। Desiring something which is not for us, which is lust actually, and wanting to have something somebody else has, to be greed for more and more of material things is actually idolatry. और जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी लालसा रखना या कुछ ऐसी शारीरिक या संसारिक वस्तुओं के बारे में लालसा, दुष्कामना या अशुद्धता या लोभ रखना मूर्ति पूजा के बराबर है। In simple words, anything that takes the place of God becomes idol for us. और जो भी चीज परमेश्वर से ऊपर हमारे जीवन में है वो हमारे लिए मूर्ति पूजा के बराबर है। It could be money, चाहे वो पैसा हो, things of this world, संसार की वस्तुएं हैं, human relationships, या आपस में व्यक्तिगत including family relationships can be idols. या पारिवारिक संबंध भी मूर्ति पूजा के बराबर हो सकता है। Even ministry can become an idol. हमारी सेवकाई भी हमारे लिए एक मूर्ति बन सकती है। How can that happen? ये कैसे हो सकता है? The ministry takes the place of relationship with God, a personal time with God, then that becomes an idol. और जब हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध का समय हम अपने दूसरी वस्तुओं की ओर ज्यादा लगाते हैं तो वो एक मूर्ति बन जाती है। A ministry must flow from our relationship with God. The primary calling is to have fellowship with God. From the fellowship will come the ministry. And और everything जो else. हमारी प्राथमिक आवश्यकता है वो परमेश्वर के साथ संगति रखना है और उसके द्वारा से हमारी परमेश्वर की सेवकाई होनी चाहिए। There's one verse in the Bible that Jesus himself spoke, which very rarely people talk about or preach about or even teach. And it is very disconcerting for many people. I'm going to quote that today. और एक आयत है जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, बाइबल में सिर्फ एक आयत है और अक्सर लोग उसको छूते नहीं हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं और कई बार लोग उससे खेदित भी हो जाते हैं या संतुष्ट नहीं होते। भाई कहते हैं मैं आज उस आयत को छूना चाहता हूँ। It's a verse from the Lord Jesus Christ's own mouth. और ये वो आयत है जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुख से जबान से कहा। In Luke 14:26 he says, लूका 14 उसके 26 में प्रभु ने कहा, if anyone comes after me, जो कोई मेरे पीछे आएगा, does not hate his father and mother, brothers and अपने sisters, wife and children, even his own life, he cannot be my disciple. और अपने माता पिता, पत्नी, लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने वो मेरा चेला नहीं हो सकता। In other words, we will never allow even these close relationships to come in the way of a relationship with God. दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे थे कि ये जो सांसारिक रिश्ते भी हैं इसको भी हम प्रभु और अपने बीच में ना आने दें। And when we put the things of this world as a priority in our lives, what happens is we end up serving money, things of this world rather than God. और जब हम इस संसार की वस्तुओं को अधिक प्राथमिकता देते हैं तो हम ऐसा हो जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस संसार की वस्तुओं के पीछे भागने लगते हैं। We all know Jesus said in Matthew 6 chapter verse 25, you cannot serve God and money. और हम जानते हैं कि मत्ती 6 और उसकी 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, You cannot serve God and money. मनुष्य और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। Does it say Manushya? Does it say the world? Money? It doesn't say money. You cannot serve. यहाँ पर लिखा दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक से प्यार करेगा। Look at last verse. परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। Then there's verse 25, is it? 24 says, 24 last part says, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Yeah. Now how come some serve God, some serve money? How did it happen? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग परमेश्वर की सेवा करें और कुछ लोग धन की सेवा करें? Depends on what you see. अब ये निर्भर करता है कि हम क्या देखते हैं, क्या दिखता है हमें। But you keep on seeing, those things become a treasure for you, and a heart will be where treasure is. और जिस चीज को हम देखते हैं, निहारते रहते हैं,
वही हमारे मन में घर कर लेता है, या वही मन में छा जाता है और फिर वो हमारे लिए परमेश्वर से अलग ले जाता है। When eyes are fixed on things of this world, then the things of this world become our treasure and our heart is there. और हमारा अगर आंखें इस संसार की वस्तुओं पर लगी हैं तो वो वस्तुएं हमारे लिए खजाना बन जाती हैं और हम उन्हीं की लालसाओं में लगे रहते हैं। And when that becomes our heart, then we serve money to get those things, and that's how we serve money. और अगर हमारा मन या हृदय उस पे लग जाता है तो फिर वो हमारे लिए पैसा और धन बन जाता है। Whereas the heart set minds on things of God, when eyes are fixed upon Him, लेकिन जब अगर हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी हुई हैं He will be a treasure. तो वो हमारा धरोहर या खजाना बन जाता है। Our heart will be where He is. तो हमारा मन या हृदय वहीं रहेगा जहां हमारा प्रभु है So we will serve Him. और हम उसकी सेवा भी करेंगे फिर। Nothing should come in the way of our service to God and the fact that we love Him, और and कुछ He should be everything in our lives. कुछ भी हमारे बीच में, जो हमारे प्रभु हैं, हमारे प्रभु और हमारे बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, तभी हम उनकी पूरी रीति से सेवकाई कर सकेंगे। Ministry is by faith. Christian life is by faith. और जो हमारी सेवकाई है वो विश्वास से है, मसीही जीवन है वो विश्वास के द्वारा ही आधारित है। One of the opposites of faith is sight. और विश्वास के विरोधाभास का जो शब्द है वो है अविश्वास। No, sight, S-I-G-H-T. दृष्टि से देखकर चलना। In 2 Corinthians 5:7, Paul writes, "We live by faith, not by sight." दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 17 आयत में, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पौलुस ऐसा लिखते हैं, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। So many Christians also have idols in their hearts, but they don't think it's idol. They think nothing wrong in that. But the fact is, when it takes the place of God, then that becomes an idol, and we forfeit the grace that could be ours when we have idols. मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 पढ़ दिया। 7वीं आयत है, 7th वर्स, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इस रीति से जब हम प्रभु की ओर देख करके चलते हैं तो फिर हम धन की ओर नहीं प्रभु की ओर देखते हैं, वो हमारा धरोहर होता है। And fellowship with God is again the amazing grace of God, that we can actually talk to Him, hear from Him, and have an intimate fellowship with God. That gets affected when we bring idols into our lives. और फिर जब हम प्रभु की ओर देखकर चलते हैं तो फिर हमारा जीवन जो है वो प्रभु के लिए अद्भुत रीति से हम समर्पित होते हैं, और जब हम संसार की ओर देखते हैं तो संसार की ओर हमारा मन लगा रहता है। And all these things I'm talking about, the hindrances, we find that in the life of the Apostle Paul, they were removed. They did not occur in his life. He made sure that they don't come in the way. और जो भी हम बाधाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये पौलुस के जीवन में थी, और लेकिन उसने अपने इन बाधाओं को अपने जीवन से दूर किया। He was a humble man. वो नम्र व्यक्ति था। Never got bitter. वो कभी कड़वाहट नहीं लेते थे मन में। He always forgave people. वो लोगों को क्षमा कर देते थे। And also he did not have idols in his life. और उनके जीवन में इस रीति की मूर्तियां नहीं थी। We see how he spoke to the elders of the church in Ephesus, the 20th chapter of Acts. और प्रेरितों के काम 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो कलीसिया के प्राचीनों से किस रीति से बात करते हैं। After his third missionary journey, he is going back to Jerusalem. और वो तीसरी अपनी सेवकाई की यात्रा से जब वो वापस यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, तब हम देखते हैं वो इस बात को लिख रहे हैं। On the way back, he stops by at a place called Miletus and calls for the elders of the Ephesian church, and he's speaking to them for the last time in his life. और फिर वो यहाँ पर जब वो इस यात्रा में हैं तो वो मिलेतुस जगह का नाम है, वहां पर वो रुकते हैं मिलेते में, और फिर वहां पे अगुओं को बुलाते हैं और फिर उनसे वो वार्तालाप करते हैं, और ये लगभग उनकी आखिरी मुलाकात होती है उनसे। He even tells them, "This is the last time I'm going to see you. I'll not see you again." और फिर वो कहते हैं मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ, इसके बाद मैं तुमसे शायद कभी नहीं मिलूंगा। And he gives a message to them. और फिर वो उनको एक संदेश देते हैं। The course of the message he tells them in 20th chapter of Acts, verse 24. और प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय उसकी 24वीं आयत में वो कहते हैं, I consider my life worth nothing to me if only I finish the race and complete the task the Lord has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि मैं उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उसकी उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। He didn't allow anything of this world, even his own life, to come in the way
of his finishing the race that he is called to do. तो run the race. उन्होंने उस दौड़ में जिसमें वो दौड़ रहे थे, उस दौड़ में कि अपने शरीर को, अपने जीवन को भी बाधा नहीं बनने दिया, रुकावट नहीं बनने दिया। And 2 Timothy chapter 4, 7 and 8 he writes, दूसरा तिमोथियस उसका 4था अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत में वो ऐसा लिखते हैं, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is stored for me the crown of righteousness, with the Lord the righteous judge the grant to be on that day, not only for me, but all who long for his appearing. दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। Every one of us who is a believer in Christ is a servant of God, men and women. हम में से हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम प्रभु के सेवक हैं। Meaning we are all doing the will of God. What does the servant do? A servant does the will of the master. और हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। एक सेवक क्या करता है? वो अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करता है। And we have to find out the will of God for us and do it, and therefore we are servants. और हमें अपने परमेश्वर की इच्छा को जानना है और उसे पूरा करना है, इसीलिए हम सेवक बनाए गए हैं। As we are fulfilling God's general will for us, He will reveal to us His specific will for us. और अगर हम प्रभु की सामान्य जो इच्छा है उसको हम जान करके पूरा करते हैं, तो हमें हमारे लिए वो जो विशेष इच्छा भी रखते हैं वो भी वो हम पर उजागर करेंगे। Once we know His specific will, we pursue that faithfully and with a lot of zeal, not allowing anything to come in the way of that calling. और फिर जब हमारे को प्रभु अपनी उस विशेष इच्छा को दर्शा देते हैं कि मेरी ये विशेष इच्छा है तेरे बारे में, तो हम उसको फिर हम पूरा करने के लिए सब कुछ अपना समर्पित करें। That's why in Ephesians 5:17 Paul writes to the church in Ephesus. इसलिए इफिसियों 5:17 में इफिसियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हैं, Do not be foolish, but understand what the Lord's will is. इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Once we know His will, we should be busy with a lot of zeal fulfilling that will. तो अगर हम एक बार उनकी इच्छा को जान जाते हैं, तो अपने पूरी शक्ति के साथ हम उस इच्छा को पूरा करें। In one of the meetings last week, a couple of days back, I spoke about all of us having a mission statement for our lives. और भाई कहते हैं कि मैंने अपने एक सभाओं में से पिछले कुछ दिनों में ये चर्चा किया था कि हम अपने मिशन स्टेटमेंट बनाकर रखें। And the Apostle Paul's mission statement is found in Romans chapter 1, 15 and 16. You can read it out if you need. और रोमियो की पत्री उसका Verse 16 actually. उसका पहला अध्याय। Romans chapter 15, verse 16. Second part. रोमियो 15 उसकी 16 आयत। रोमियो 15:16 में हम देखते हैं पौलुस का मिशन स्टेटमेंट क्या है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। He was an apostle, in a way he was a prophet, he was a pastor of pastors, evangelist, Bible teacher, everything. But the main thing was, what he was willing to die for was the gospel of Christ, the evangelism. और हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो प्रेरित भी हैं, वो पासबानों के पासबान हैं और फिर अगुवे भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं सुसमाचार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। It's very important for all of us to identify our mission statement, write it down so that we pursue that till the very end without allowing anything to come in the way of that. इसलिए हम में से हर एक को अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में एक मिशन स्टेटमेंट बना लेना चाहिए कि मुझे प्रभु से क्या मिला है और मैं प्रभु के लिए क्या करूंगा, ये हमें बना लेना चाहिए और उसको पूरा भी करना चाहिए। Many years back, the Lord gave me my life's mission statement. और कुछ वर्षों पूर्व भाई कहते हैं कि प्रभु ने मुझे भी मेरे जीवन का मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए अगुवाई किया। My primary calling was to share the gospel to people of other faiths, my own early faith. भाई कहते हैं कि मेरी प्राथमिक बुलाहट जो थी वो लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे बुलाया गया था। Second calling was to
encourage Christians to have an intimate, close walk with God. और दूसरा जो प्रभु ने मुझे कार्य सौंपा था वो था कि मसीहियों को प्रभु के साथ बड़ी नजदीकी के साथ जीवन बिताने के लिए प्रेरणा दूं. And third was after they began to have interaction with a lot of pastors and church leaders, to have had a burden for making them understand what a tremendous calling they have got and to enjoy the ministry, not to get discouraged and fearful. और फिर तीसरी चीज ये था कि जब वो बहुत सारे पासवानों से और सेवकों से मिलने लगे और उनसे बातचीत करने लगे तो उनको फिर उनको प्रभु के वचन में बढ़ाना भाई चाहते थे कि वो किसी रीति से निराश ना हो अपनी सेवकाई में, वरन जो प्रभु ने उन्हें सेवकाई सौंपी उसमें आनंदित मन से वो सेवा करें. So threefold ministry. तो भाई की तीन तरह की सेवकाई है. Evangelism, people of other faiths. जो सुसमाचार प्रचार करना, जो दूसरे मतों में चलते हैं उनको. Discipling Christians to a close walk with God. और प्रभु के लोगों को चेला बनाना ताकि वो प्रभु के नजदीकी में बने रहें. And encouraging pastors to learn to enjoy the ministry and not complain and question God. और सेवकों को उभारना कि वो शिकायत के साथ काम ना करें, वरन आनंद के साथ प्रभु की सेवा में लगे रहें. And to summarize, mission statement goes like this. और भाई कहते हैं इसको मैं छोटा संक्षिप्त में अगर कहूं तो वो इस तरह से है. To be an effective, obedient and faithful instrument of God in leading people of other faiths to saving knowledge of Christ and to build up Christians to a close walk with God. और फिर भाई कहते हैं कि एक तो सुसमाचार के द्वारा से अन्य मत के लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करना, और दूसरा जो अपने जो विश्वासी गण हैं उनको प्रभु की ओर प्रेरणा देना ताकि वो मसीह में दृढ़ता से बने रहें. To be an obedient, faithful and effective instrument of God. ताकि वो आज्ञाकारी और प्रभु के विश्वास योग्य पात्र बने रहें. Very simple mission statement. बहुत ही साधारण रूप से मिशन स्टेटमेंट भाई ने बनाया है. And it's important for me not to allow anything that comes in the way of this fulfilling this call. और भाई कहते हैं अब ये मैं इसको देखता हूं कि मेरे को इस मिशन स्टेटमेंट को पूरा करने में कोई भी चीज मेरे जीवन में बाधा ना करे. And all of us should have mission statement because we are all servants of God. So I pray about it, and then you write down in a simple 2-3 sentences what a mission statement is. Please pursue till the very end. That's running the race that God has marked out for us. और फिर हम में से हर एक की एक मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए, और आप लोग भी जो लिख लें कि प्रभु से पहले प्रार्थना कर लें और करके फिर जैसा प्रभु अगुवाई करें उसको लिख लें कि मेरे को प्रभु ने ये काम सौंपा है और उसे मैं, और फिर देखें कि उसको पूरा करने में कोई कमी ना रह जाए. Christian life is like running a race. और मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जो लगभग दौड़ को दौड़ने के बराबर है. The 11th chapter of Hebrews lists all the wonderful men and women of God who did great things for God by faith. और इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे विश्वास के योद्धाओं का चर्चा हम पढ़ते हैं. And then read about the 12th chapter begins in verse 1 by saying, और जो 12वां अध्याय है इब्रानियों का उसका पहला अध्याय वो ऐसा शुरुआत में लिखना शुरू करते हैं. Since the surrounded by such a great cloud of witnesses, जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, let us throw everything that hinders and sin that entangles us. तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें. Let's run with perseverance the race marked out for us. वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें. Fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. और अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें. And this race should run according to rules of the race. और जो ये दौड़ हमें दौड़ना है वो पूरे नियम के अनुसार, दौड़ के जो नियम है उसको पालन करते हुए दौड़ना है. When I was young, I was an athlete from Madras University, also from my college, a school champ for 3 years, college champ for all 5 years. I was the 400 meters record holder. और भाई कहते हैं जब मैं जवान था, कॉलेज में था, तो मैं एक अच्छा एथलीट था, दौड़ता धावक था, और लगभग 5 साल तक भाई कहते हैं मैंने रिकॉर्ड कायम करके रखा था. The very first year of my college, I beat all the final years, and it came out in newspaper and Indian Express. Rajkumar creates history. और जब भाई पहले वर्ष में गए थे, वहां से उन्होंने शुरू किया. 5वें वर्ष में जब भाई पढ़ रहे थे तो वहां पर न्यूज़पेपर में ये खबर आई कि राजकुमार ने एक इतिहास बना दिया है. The very first year, I became the college champ. और पहले ही वर्ष में भाई कॉलेज के चैंपियन बन गए थे. God trained me at that time to run a much bigger race, much later.
और भाई कहते हैं कि प्रभु उसी समय से मुझे एक बड़ी दौड़ दौड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। At that time, when you're in a 400-meter race, you run within your lane. It's one lap around 400 meters. You should जब run आप within your lane. You cut the lane, you are disqualified. जब आप 400 मीटर की दौड़ दौड़ रहे होते हैं तो आपका जो लेन है उसी लेन में आपको दौड़ना है। अगर आपने उसको इधर उधर पार कर लिया, उसकी लाइन को तोड़ दिया, तो फिर आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। At the start, when the starter fires the gun, you should start only leave the mark only after the gun is fired. और जब वो शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति बंदूक लेके खड़ा है, अगर वो अपनी बंदूक चलाता है, उससे पहले आप दौड़ गए तो भी आप रेस में जीतोगे नहीं या निकाल दिए जाओगे, या फिर जब गन चलेगा उसी टाइम आपको दौड़ना है। If you leave your starting box before the gun fires, twice you would do it out of the race. अगर उसने बंदूक चलाई नहीं और आप दौड़ गए, तो फिर अगर 2 बार आपने ये गलती की तो आप निकाल दिए जाओगे, उस दौड़ से आप बाहर हो जाओगे। And when you run, you should not look behind and you lose time and look behind and see who's near you. और अगर आप दौड़ते वक्त इधर उधर देखते हैं या पीछे देखते हैं मुड़ के कौन आपके नजदीक है, तो आप अच्छे दौड़ने वाले नहीं बन सकते। You look at the finish, at the thread that covers the track, just focus on that. आपका ध्यान होना चाहिए जो अंत में वो जो धागा रस्सी बंधी होती है, आपका ध्यान उस रस्सी के ऊपर होना चाहिए और आप उसको देख करके दौड़ें। In the same way, we look at Jesus and run the race. और इसी रीति से हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है और दौड़ में दौड़ते जाना है। We don't compete with other people, we compete against ourselves. हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, हम अपने आप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। Whatever hinders you, you put away. You wear very light clothing. अगर हम क्या चीज हमें रोकती है, उसको हमें अपने से दूर करना है। हमें हल्के से हल्का कपड़ा पहनना है। In swimming, for example, many swimmers, they shave off their head when they swim because the hair resists, the water resists the hair and they can't swim fast. और जो तैराक होते हैं वो अपना सिर को बाल मुंडा देते हैं ताकि उनके तैरने में वो बाधा ना हो, क्योंकि जब तैरते हैं तो बाल कई बार बाधा बन जाता है। In Christian, you put away everything that hinders, idolatry, other things come in the way of your walk with God. Put away everything else and focus on Jesus, the author and perfecter of our faith. Eyes on him. मसीही जीवन में भी एक मसीही को हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाली बातों को अपने से दूर करना है। मूर्ति पूजा हो या हमारा लालच हो, जो भी चीज हो, हमें उससे अपने से दूर करना है और दौड़ना है उस दौड़ में। Nothing is worth taking the place of God. कोई भी वस्तु प्रभु यीशु मसीह का स्थान नहीं ले। And to be able to serve him is the ultimate grace of God, because forget about the fact we're just children of God. We're children of God, we are servants of God, slaves of Christ. It's a joy to be a slave of Christ. तो प्रभु यीशु मसीह के सेवक होने का एक हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। हमें इसको आनंद के साथ करना है। हम प्रभु के सेवक हैं, हम उनके गुलाम हैं। That's why in the book of Ephesians chapter 3 verse 7 Paul writes, इसीलिए इफिसियों 3:7 में पौलुस ऐसे लिखते हैं, I became servant of the gospel by the gift of God's grace given me by the working of his power. इफिसियों 3:7, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। 8th verse, although I am less and least of all God's people, this grace was given to me to preach to Gentiles the unsearchable riches of Christ. 8वीं आयत, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। So never complain about the calling God has given you. तो वो कभी भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, जो जिस बुलाहट से प्रभु ने उनको बुलाया है उसमें कोई उनका गिला शिकवा नहीं है। In the Old Testament time, the Levites were called to be priests of God for the पुराने नियम में हम देखते हैं लेवियों को बुलाया गया था कि वो प्रभु के याजक महायाजक बने। They were not given physical land, the land of Canaan. उनको कनान देश में कोई भूमि नहीं दी गई। For the Lord had a very special covenant with them. लेकिन परमेश्वर की उनके साथ एक बहुत ही विशेष वाचा बंधी हुई थी। No physical land. The land was supposed to come to the half tribe of Ephraim and half tribe of Manasseh, sons of Joseph. और हम देखते हैं कि उनको कोई ऐसा भूमि या स्थान नहीं दिया गया था। उनको जो मनश्शे और एफ्रेम की जो वंशज थे, उनके जीवन, उनके भूमि में से कुछ भाग मिला था। Again, cities of refuge to live in. और उनको ऐसे जो वो नगरी दी गई थी, शरण नगरियां दी गई थी।
And but then God made a special covenant with them. It's found in the book of Malachi, chapter 2, 5 to 7. और मलाकी की पुस्तक उसके दूसरा अध्याय में 5 से 7 में हम उस विशेष दूसरा अध्याय 5 से 7 में हम पढ़ते हैं। Now, covenant of life and peace, and I gave them to him. मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी है वह जीवन और शांति की थी। This called for reverence. He revered me and stood in awe of my name. और मैंने इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे। True instruction was his mouth, nothing false was found upon his lips. He walked with me in peace and uprightness and turned many from sin. और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से भय खाता था और मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी। For the lips of a priest ought to preserve knowledge, and from his mouth men should seek instruction, because he is a messenger of the Lord Almighty. और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी, वह शांति और सिधाई से मेरे संग चलता था और बहुतों को धर्म से लौटा ले आया, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें कि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। The good news is, in the New Testament, you and me are priests. लेकिन ये बड़ी एक अच्छी खबर है कि आप और मैं इस नए नियम में या नए समय आज के समय में हम प्रभु के याजक ठहरा दिए गए हैं। A priest intercedes on behalf of people to God. That's what we also do. We pray for other people. We are priests of God. और जो याजक होता था वो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में होता था, मनुष्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वार्तालाप करता। आज हमें रखा गया है कि हम मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में मनुष्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, वार्तालाप करें। In 1 Peter chapter 2 verse 9, Peter writes to the church, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. सो पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम ऐसा पत्रस लिखते हैं कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। And therefore, we should understand that we are called to be a people who walk reverently, walk closely with them, and turn many from sin. और इसीलिए हमें इस बात को समझना है कि हमें प्रभु ने एक विशेष कार्य के लिए चुना और बुलाया है और हम उसको हमें पूरा करना है। Lord also told the Levites in the book of Joshua 18 chapter verse 7. और जोशुआ की पुस्तक 18 उसके 17वें आयत में प्रभु ने लेवियों से कहा, He told them about how the priestly service of God is their inheritance. The priestly service of God is their inheritance. और कैसे महायाजकीय या याजकीय सेवा उनको दिया गया था। So therefore, we should cherish this ministry. Don't complain about it. So whatever calling God has given you, maybe a small thing you are doing in the eyes of the world, for God is very, very precious. और इसीलिए जो प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर सेवकाई सौंपी है, उसको हमें आनंद से करना है, ना कि किसी रीति से दुखी होकर या कुड़कुड़ाते हुए। So please don't let it come in the way of your serving God, and otherwise it becomes an idol. We miss out on this amazing grace of being able to be servants of the Most High God. और अगर कोई भी वस्तु इस पृथ्वी की हमारे और परमेश्वर के बीच में आती है, तो वो मूर्ति के रूप धारण कर लेती है, और फिर इससे हम वो जो सेवकाई हमें सौंपी गई है, उसमें हम अपने लिए जीवन में बाधा खड़ी कर देते हैं। I got only one more point today. Last week I had 2 points. Today I got only 1 point. भाई ने कहा कि मैं 2 पॉइंट बोलना चाहता था, अभी 1 पॉइंट ही मैं बोल पाया। Last week I spoke on 2 points. Today only 1 point. So अच्छा, पिछले सप्ताह भाई कहते हैं मैंने 2 पॉइंटों पे बोला था, आज मैं 1 ही पॉइंट बोल रहा हूँ। And next week I've got 3 more points to cover. I'll carry on next week again. So भाई कहते हैं अगले सप्ताह में 3 और पॉइंटों को बताऊंगा और वो अगले हफ्ते हम भाई चर्चा करेंगे। Very important, because we must learn to receive grace from God. Never allow anything to come in the way of God's grace. God pouring out grace upon us. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें किसी भी वस्तु को अपने और परमेश्वर के अनुग्रह में आड़े नहीं आने देना। Not only salvation is by grace, not only salvation is by grace, even Christian life is by grace. Christian ministry is by grace. न सिर्फ हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, वरन मसीही जीवन हमें प्रभु के अनुग्रह से मिला है। Peace of God is given to us because of grace. और परमेश्वर की शांति, प्रभु का आनंद हमें मिला है प्रभु के अनुग्रह से। Romans 8:32 says, He did not spare his own son, but gave for us, how did along with his son graciously give us all things. रोमियो 8:32 में हम पढ़ते हैं कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा,
परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। God bless you all. प्रभु आप हम सबको आशीष दे। Let's come in a minute.